Uh, Good morning and good afternoon. Now we are going to start a new chapter, new topic by the law of motion. Before going to start the law of motion, we should have some knowledge about force, inertia. तो थोड़ा सा डिफिनेशन ले लेते हैं. What is the force and inertia? These are two points जो हम लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने से पहले we should have about some idea about force and about inertia. What is the inertia and what is the force? Force is basically this. You can define it is just like an agency. Agency, or you can say like a cause. Cause जिससे you can change the shape of the body, you can change the motion of the body. या तो आप उसको शेप चेंज कर सकते हैं या उसके शेप को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स. दिस इज द एजेंसी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और इट टेंड्स टू चेंज, कोशिश कर सकता है. तो दैट इज कॉल्ड द फोर्स. मतलब दिस इज जस्ट लाइक एजेंसी थ्रू विच यू कैन चेंज the state of body, direction of the body, and motion of the body. It tends to change also. Either it can change the shape of the body, can change the motion of the body, or it tends to change the shape of the body, motion of the body, direction of the body. It's called the agency. Just like. Okay. And second one is inertia. What is inertia? This is inheritance property of the body by virtue of which it cannot change its shape, its uniform motion in a straight line by itself. It opposes any change in the body, like inertia. It is three types of inertia. It is inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Right? तो inertia of rest क्या बोलते हैं? If somebody is being rest, रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहना चाहेगा. Right? तो वो अगर it's being in rest, तो this is it wants to be in the rest position. If you want to change its rest position, you have to apply some external force. Right? First is rest position of inertia, second motion of inertia. Now suppose some body is moving by uniform motion in a straight line. It continues to be in this straight line if there is not any such external force. Direction also you can define. कोई बॉडी अगर सर्कुलेशन मोशन कर रहा है तो मूव करता रहेगा. इट कंटिन्यूज टू बी इन ये सर्कुलर मोशन जब तक उसके किसी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए. राइट? अब तीसरा चीज आता है मोमेंटम. मतलब ये थोड़ा सा ये आइडिया हमें लेना इसलिए पड़ेगा कि जब लॉ ऑफ मोशन आप करेंगे तो इसकी बहुत ही मीनिंगफुल चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंटम. मोमेंटम इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी. इफ यू आर अप्लाइंग एनी एक्शनल फोर्स टू अनदर बॉडी, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी डेवलप होती है 10, और ये बेसिकली क्या होता है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द वेलोसिटी. राइट? फोर्स को क्या डिफाइन, फोर्स का यूनिट बता सकते हैं. फोर्स टू एम इंटू ए. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. इसको अगर यूनिट लिखते हैं तो एसआई यूनिट में होता है न्यूटन, और सीजीएस में होता है डाइन.
1 डाई, राइट। और एक और थोड़ा डिफाइन करने की बात है, अगर इनर्शिया जो है कि जो आप मान सकते हैं कैसे मेजर किया जाता है, अगर जिस बॉडी का अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? उसको उसमें इन्हीं चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। द बॉडी which having more mass, you have to apply more force to change any to you can say like any change। अगर आप उसको मोशन में चेंज करना चाहते हैं, उसके शेप में चेंज करना चाहते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। मोमेंटम आपने बता ही दिया, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। थर्ड वन आता है हमारा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज? It says that if net force applied on the system is zero, then if net force applied on the system is zero, then जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो भी जीरो होगा। इसको आप इजिएस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, एनीबॉडी which is in rest or in the moving by uniform motion in straight line, तो वो उसी पोजिशन में रहना चाहेगा if there not be applied any external force, right। Also you can say the Newton's law states that this is the law of equilibrium, मतलब वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होता है, नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए और नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, राइट। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? चेंज इन द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एनी चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स। इसकी तीन कंडीशन भी हम डिफाइन करेंगे। अगर m कांस्टेंट है तो m इंटू डीवी अपॉन dt लिख सकते हैं, राइट। मतलब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं f इज इक्वल टू dp अपॉन dt इफ m इज कांस्टेंट then f is equal to m dv अपॉन dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यू कैन राइट लाइक दिस dm by अपॉन dt। अगर आप दूसरी चीज और भी आती हैं, जो न्यूटन सिंगल लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, राइट। इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में लिख सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन डी टी, एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई अपॉन डी टी, एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव नॉलेज अबाउट फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन, सिंगल लॉ ऑफ द मोशन, सिंगल लॉ ऑफ द न्यूटन। तो थ्री पॉइंट्स जो हमें सारे डिफाइन करने पड़ेंगे, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें थोड़ा इजिएस्ट में भी होगा, हम ज्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये जो लॉ जो स्टेट करता है हमें बताता है कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, तो इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ये कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके जो कंपोनेंट फॉर्म में जो एफ एक्स निकालते हैं, एफ वाई निकालते हैं, एफ जेड निकालते हैं, मतलब यू कैन से लाइक दिस कि नेट फोर्स हम निकालेंगे। ये नेट फोर्स क्या होगा, जो नेट फोर्स हमारा है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है जो,
बाय द सिस्टम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो हम ये सारे जो कंपोनेंट फॉर्म को भी हम निकालेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। गोइंग फर्दर forward, we should have some more knowledge about variation of momentum. Suppose you are having two bodies. Suppose two bodies इनके मास सपोज सेम है, तो उनके जो इक्वल मास है उनमें सपोज ये, तो उनके मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। तो कैसे होगा, सपोज P इक्वल टू m v1 एंड फर्स्ट बॉडी ऑफ वन जिसका मास m है, और दूसरी के लिए मान लो मास उसका भी, बॉडी का जो मास वो भी सेम है, उसकी वेलोसिटी जो उसमें डेवलप होती है v2। तो इसमें जो ग्राफ बनता है हमारा लाइक दिस, डिफाइन कर लेंगे तो कैसे होगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड वो कर दें, P1 P2 P1 अपन P2 इक्वल टू व्हाट, V1 अपन V2। मतलब अगर इफ यू आर हैविंग टू बॉडीज हैविंग द सेम मास, तो जो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम होगा और सेकेंड बॉडी का मोमेंटम होगा और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल होगा, दोनों में सेम वेलोसिटी डेवलप होगा। रखिए हमारा अगर दोनों का मास सेम है तो ये ऐसा होगा। तो इसको हम ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसा कर सकते हैं, V एंड P का ग्राफ अगर बनाते हैं, यू विल बी हैविंग लाइक दिस ग्राफ, m कांस्टेंट, तो यू विल बी हैविंग लाइक दिस ग्राफ। इसको उसको डिवाइड कर दें, P1 इज इक्वल टू P2, यानी P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2। इस तरीके से आपका रिलेशन डेवलप होगा और आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इफ यू आर हैविंग इक्वल वेलोसिटी, देन दिस इज फर्स्ट। सेकेंड केस में हम लेते हैं, देन दिस इज M, दिस इज P और कांस्टेंट ये हो गया आपका वेलोसिटी। सपोज ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर हम डिफाइन करते हैं कैसे होगा, P1 इज इक्वल टू M1 M1G, P2 इज इक्वल टू M2D। मतलब आपने ऐसा लिया है, दो मासेस लिए हैं जिसके मासेस, दो बॉडी लिए जिसके मासेस डिफरेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी फोर्स जो आपने अप्लाई किया है, तो उसमें जो वेलोसिटी डेवलप हुई है वो सेम है, तो वो आपका ग्राफ ऐसा मिलेगा। अगर डिफाइन कर सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल टू व्हाट, M1 अपॉन M2, ये रिलेशन बनेगा, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। And some point to get such concurrent forces. What is the concurrent forces? The forces, the number of forces which are being applied on the same point. Number of forces applied on the same point, they are called as concurrent forces, right? For equilibrium के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फोर्स को आप ऐड कर देंगे, वो अगर ऐड करने के बाद सपोज यू आर एडिंग नंबर ऑफ फोर्सेस, तो यू आर बीइंग अप्लाइड द सेम पॉइंट, और ऐड करने के बाद अगर जीरो आते हैं, देन यू कैन हैव इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यू कैन हैव लाइक दिस F1 F2 F3 नंबर ऑफ n टिल Fn इज इक्वल टू 0। ऐसा है कंकरेंट फोर्सेस के लिए ये कंडीशन हो जाती है फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, ठीक है। अगर सपोज यू आर हैविंग थ्री फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, दीज आर थ्री फोर्सेस, सपोज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, देन उनको ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद अगर जीरो हो जाता है तो ये कंडीशन मिलेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सपोज F1 एंड F2 F3 थ्री फोर्सेस और किसी सेम पॉइंट पे वो लग रहे हैं, सपोज F1 फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है अल्फा, F2 लग रहा है बीटा,
और इसके जो F3 के सामने लग रहा है जो एंगल बन रहा है, तो 3 फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, जो एंगल बनाते हैं, तो उनमें जो रिलेशन जो बनता है हमारा F1 अपॉन साइन अल्फा F1, उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा अल्फा, F2 उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा बीटा, F3 के अपोजिट में जो एंगल गामा, उनको जो रिलेशन बनता है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ऐसा रिलेशन बनता है, तो इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। ये जो है लामीज लॉ होता है, इसको भी हमेशा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे तो भी हमें इसको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करते समय। क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज वी आर हैविंग 2 क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफाइन ये करना है व्हाट द एंगल ऑफ रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सपोज रोप जिसकी जो लेंथ है टोटल 2 मीटर है, दिस वन एंड दिस वन 2 मीटर है, लेकिन मिडिल में 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। तो और लगा के इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है डिफाइन की गई है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें निकालना है व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सपोज ये जो कंडीशन है, जो वेट के वजह से जो है कि हम अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। वर्टिकल से सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं और टेंशन डेवलप कराते हैं, देखते हैं। सपोज ये T1 हो सकता है, ये T2 हो सकता है, ये T3 हो सकता है। मतलब मिडिल पॉइंट पे वो फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहे व्हाट द एंगल है, थीटा पूछा जा रहा है, व्हाट द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम फ्री बॉडी फॉर एफ बी बनाए इसको पहले। एफबीटी अगर बनाना आ गया तो समझ लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगी, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां जो आने की देख लेते हैं, इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं। पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। T2 इज व्हाट 60 किलोग्राम वेट है ना, 60 जी हो जाएगा फर्स्ट। एंड इसके लिए देखेंगे हम, ये क्या हो सकता है, जब दिस इज थीटा एंगल विद वर्टिकल, तो T1 cos थीटा हो जाएगा। और ये T1 sin थीटा हो जाएगा। ये हमारा टेंशन है, इसके लिए देख लेते हैं। और T1 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, T1 cos थीटा इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 60 जी। ये सेकेंड हो सकता है। और T1 sin थीटा क्या हो सकता है, T1 साथ जो किसको बैलेंस करेगा, T3 को बैलेंस करेगा। T1 इज इक्वल टू T1 cos थीटा इज इक्वल टू T3 इज व्हाट 50 न्यूटन 50। अब तीनों इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्व कर देंगे। T sin थीटा, मतलब हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल के देखते हैं। T1 sin थीटा 50
इजंट इट? आप क्वेश्चन देख लें कैसे डिफाइन करना है फ्री बॉडी डायग्राम। T1 cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? T2 को। और T2 किसको बैलेंस कर रहा है? मतलब कभी भी हम जो है ना कि अगर वायदा पे इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, छाता लगाना जरूर सीख लें। यहाँ छाता टेंशन की साइड में लगेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। T1 साइन थीटा अपॉन T1 cos थीटा इक्वल टू 50/60। जी सपोज आप ले लेते हैं, जी इक्वल टू 10 ले लें सपोज, तो इंटू 10 कर सकते हैं आप। ये क्रॉस हो सकता है। टाइम थीटा इक्वल टू व्हाट? ये कर सकते हैं आप। ऐसा हो सकता है 5/6 5/60। थीटा आपका ऐसा निकल सकता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/60। मतलब इतने एंगल बना सकता है। वैसे आपको फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे निकालना है आपको इजीली, टेंशन आपको इस तरीके डिफाइन करना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। T2 इक्वल टू T2, ये टेंशन लग रहा है, T2 इक्वल टू इसको बैलेंस करेगा। और T1 cos थीटा जो इसको, वो किसको बैलेंस करेगा? T2 को बैलेंस कर, T2 दिस है। फिर और T1 sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? ये T3 को करेगा। ऐसा होगा, सॉल्व कर लेंगे, आपका आराम से थीटा जी रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। T1 और T2 निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखें। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सपोज, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप सपोज आप इसको T1 दिस इज T1 और T2, टेंशन निकालना है आप। सॉल्व करने की कोशिश करें। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, जो वीडियो बनाए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप T1 cos थीटा लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं, दिस वन ऑल्सो 60, राइट। ये टेंशन आपको T cos थीटा लिख सकते हैं आप। और फोर्स जी यानी उसका जो वेट है जो हैंग किया गया है, इसको आप कैसे करेंगे, दिस वन। ये आप T1 sin 30 ले सकते हैं, नहीं T1 cos थीटा। अब आपका जब आराम से सॉल्व होगा कोई प्रॉब्लम आएगी। T1 cos 60 इक्वल टू T2, राइट, इजंट इट। ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। एंड T1 sin 60 इक्वल टू 4 kg वेट।
राइट। T1 इज व्हाट, T1 साइन 60 कितना होता है, इक्वल टू 4 इंटू मतलब जी ले ले सपोज 10, जी इक्वल 10, T sin 60 इक्वल टू 40। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से आप जो है क्या ना, इसको T1 निकाल आएगा, यहां से आपको T1 निकाल आएगा। जब T1 निकाल आएगा तो यहां से T2 निकाल सकते हैं। नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम से अगर देखते हैं कि अगर T cos थीटा जो इसको बैलेंस कर रहा है और T1 sin थीटा जो इसको बैलेंस कर रहा है, दोनों इक्वेशन बना देंगे, दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, आपके जो है T1 T2 आ जाएगा आसानी से। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में लगाने की जरूरत, लेकिन ये माइंड में जरूर होना चाहिए। जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो जब भी बन सकता है थोड़ा सा कंपोनेंट फॉर्म में आपको फोर्स को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जो मैंने पहले बताया। वो अगर माइंड में है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। Another example, suppose there are 3 blocks M1, M2, M3। ये तीनों ब्लॉक्स जो है किसी स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड है और किसी टेबल पर रखे हुए हैं, और इन ब्लॉक्स को जो है फोर्स से जो है खींचा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम T1 और T2 की वैल्यू पूछ ले तो हम कैसा निकालेंगे, वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है, वही फ्री बॉडी डायग्राम से निकालेंगे। ये माइंड में रखना चाहिए, जब पूरे सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं तो सब पे जो एक्सेलरेशन जो सेम डेवलप होता है, सब पे जो एक्सेलरेशन सेम डेवलप होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, F इक्वल टू एम होता है, A इक्वल टू व्हाट, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका जो है एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा पूरे सिस्टम पे। और सपोज T1 निकालना है आपको, तो कैसे होगा, T1 जो है जो टेंशन होगा, सपोज ये टेंशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, T1 इज इक्वल टू, जो बेसिकली क्या होगा, M3 की वजह से होगा, M3A, M3 क्या है, M3 और A आपका ये आ गया F upon M1 M2 M3, ये निकल के आएगा। और अगर T2 की बात करते हैं, T2 क्या होगा, T2 विल बी, क्योंकि इधर से खींचा जा रहा है, F माइनस T2 इक्वल टू M1, right? Isn't it? M1A। और T2 भी निकालने की बात आती तो माइनस T2 इक्वल टू M1A माइनस F T2 इक्वल टू F माइनस M1A। ये आपका निकल के आ जाएगा। अगर ऐसे आपका सिस्टम है तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। और दूसरा कोई सिस्टम बना के दिखाते हैं आपको। Suppose the number of blocks M1, M2, M3,
M4, ये सारे स्ट्रिंग से बने हुए हैं। सपोज M1 M2 M3 ब्लॉक्स हैं ऐसे जो स्ट्रिंग से आपस में जो है हैंगअप है, और किसी स्ट्रिंग से इसको ऊपर खींचा जा रहा है अप साइड में, किसी टेंशन से है। समझ लो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये आपस में जो है कनेक्टेड है, और आपस में ब्लॉक के बीच में जो टेंशन डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग में, ये T2 T3 T4, और ये ऊपर अप साइड में सारे सिस्टम जा रहा है सपोज। ठीक है, तो अभी अगर हमें पूछना, मतलब सपोज यू आर बीइंग आस्क्ड कि फाइंड T1 T2 T3 T4, देन कैसे निकालोगे? तो T1 इक्वल टू क्या, अप साइड में जा रहा है, तो T1 माइनस M1 M2 2 प्लस M3 M4 G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 M4 इंटू ए। चूंकि आप साइड में चूंकि मूवमेंट में है ना, तो एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा सिस्टम में, सब में जो एक्सेलरेशन ए डेवलप होगा। ठीक है, तो T1 क्या निकल आएगा? T1 इक्वल टू व्हाट, ए प्लस जी आ जाएगा, M1 M2 M3 M4 ऐसे निकल आएगा। इसी तरीके से अगर T2 पूछता जा रहा है, क्योंकि सब ऊपर आप डायरेक्शन में है, T2 इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस M2 प्लस M3 प्लस M4 इक्वल टू M2 प्लस M3 M4 इंटू ए। T2 इक्वल टू ए प्लस जी। Another example, suppose there are 3 blocks M1 M2 M3। ये तीनों ब्लॉक्स जो है किसी स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड है और किसी टेबल पर रखे हुए हैं, और इन ब्लॉक्स को जो है फोर्स से जो है खींचा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम T1 और T2 की वैल्यू पूछ ले तो हम कैसा निकालेंगे? वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है, वही फ्री बॉडी डायग्राम से निकालेंगे। ये माइंड में रखना चाहिए, जब पूरे सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं तो सब पे जो एक्सेलरेशन जो सेम डेवलप होता है, सब पे जो एक्सेलरेशन सेम डेवलप होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? F इक्वल टू एम ए होता है, ए इक्वल टू व्हाट, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका जो है एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा पूरे सिस्टम पे। और सपोज T1 निकालना है आपको, तो कैसे होगा? T1 जो है जो टेंशन होगा, सपोज ये टेंशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। T1 इक्वल टू जो बेसिकली क्या होगा, M3 की वजह से होगा, M3 A, M3 क्या, M3 और A आपका ये आ गया F upon M1 M2 M3, ये निकल के आएगा। और अगर T2 की बात करते हैं, T2 क्या होगा? T2 विल बी, क्योंकि इधर से खींचा जा रहा है, F माइनस T2
इक्वल टू m1, right? Isn't it? m1a और T2 की निकालने की बात आती तो माइनस T2 इक्वल टू m1a माइनस f T2 इक्वल टू f माइनस m1a, ये आपका निकल के आ जाएगा। अगर ऐसे आपका सिस्टम है तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। और दूसरा कोई सिस्टम बना के दिखाते हैं आपको। Suppose the number of blocks m1, m2, m3, m4, ये सारे स्ट्रिंग से बने हुए हैं। सपोज m1, m2, m3 ब्लॉक्स हैं ऐसे जो स्ट्रिंग से आपस में जो है हैंगअप है, और किसी स्ट्रिंग से इसको ऊपर खींचा जा रहा है अप साइड में, किसी टेंशन से है। समझ लो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये आपस में जो है कनेक्टेड है, और आपस में ब्लॉक के बीच में जो टेंशन डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग में, ये T2, T3, T4, और ये ऊपर अप साइड में सारे सिस्टम जा रहा है सपोज, ठीक है। तो अगर हमें पूछना, सपोज यू आर बीइंग आस्क्ड कि फाइंड T1, T2, T3, T4, देन कैसे निकालोगे? तो T1 इक्वल टू क्या अप साइड में जा रहा है, तो T1 माइनस m1 m2 2 प्लस m3 m4 g इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 इंटू ए। चूंकि आप साइड में चूंकि मूवमेंट में है ना, तो एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा सिस्टम में, सब में जो एक्सेलरेशन ए डेवलप होगा, ठीक है। तो T1 क्या निकल आएगा? T1 इक्वल टू व्हाट, ए प्लस जी आ जाएगा, m1 m2 m3 m4 ऐसे निकल आएगा। इसी तरीके से अगर T2 पूछता जाएगा, क्योंकि सब ऊपर आप डायरेक्शन में है, T2 इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस m2 प्लस m3 प्लस m4 इक्वल टू m2 प्लस m3 m4 इंटू ए। T2 इक्वल टू ए प्लस जी। Another example, suppose there are 3 blocks m1, m2, m3। ये तीनों ब्लॉक्स जो है किसी स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड है और किसी टेबल पर रखे हुए हैं, और इन ब्लॉक्स को जो है फोर्स से जो है खींचा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम T1 और T2 की वैल्यू पूछ ले तो हम कैसा निकालेंगे? वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है, कोई फ्री बॉडी डायग्राम से निकालेंगे। ये माइंड में रखना चाहिए, जब पूरे सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं तो सब पे जो एक्सेलरेशन जो सेम डेवलप होता है,
सब पे जो एक्सप्रेशन सेम डेवलप होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं आप? एफ इजिकल टू एम ए होता है, ए इजिकल टू व्हाट, एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपका जो है एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा पूरे सिस्टम पे। और सपोज T1 निकालना है आपको, तो कैसे होगा? T1 जो है जो टेंशन होगा, सपोज ये टेंशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। T1 इज इक्वल टू, जो बेसिकली क्या होगा, M3 की वजह से होगा। M3 के M3 और A आपका ये आ गया F अपन M1 M2 M3, ये निकल के आएगा। और अगर T2 की बात करते हैं, T2 क्या होगा? T2 विल बी, क्योंकि इधर से खींचा जा रहा है, F माइनस T2 इक्वल टू M1, राइट? Isn't it? M1A। और T2 भी निकालने की बात आती तो माइनस T2 इक्वल टू M1A माइनस F T2 इक्वल टू F माइनस M1A। ये आपका निकल के आ जाएगा। अगर ऐसे आपका सिस्टम है तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है? और दूसरा कोई सिस्टम बना के दिखाते हैं आपको। सपोज Indian number of blocks M1 M2 M3 M4, ये सारे स्ट्रिंग से बने हुए हैं। सपोज M1 M2 M3 ब्लॉक्स हैं ऐसे, जो स्ट्रिंग से आपस में जो है हैंगअप है, और किसी स्ट्रिंग से इसको ऊपर खींचा जा रहा है अप साइड में, किसी टेंशन से है। समझ लो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये आपस में जो है कनेक्टेड है, और आपस में ब्लॉक के बीच में जो टेंशन डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग में, ये T2 T3 T4, और ये ऊपर अप साइड में सारे सिस्टम जा रहा है सपोज, ठीक है? तो अगर किसी हमें पूछना, सपोज यू आर बीइंग आस्क्ड कि फाइंड T1 T2 T3 T4, देन कैसे निकालोगे? तो T1 इक्वल टू क्या, अप साइड में जा रहा है, तो T1 माइनस M1 M2 2 प्लस M3 M4 G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 M4 इंटू A। चूंकि आप साइड में चूंकि मूवमेंट में है ना, तो एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा सिस्टम में, सब में जो एक्सेलरेशन A डेवलप होगा, ठीक है? तो T1 क्या निकल आएगा? T1 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस G आ जाएगा,
सेम हो जाएगा M1 M2 M3 M4, ऐसे निकल आएगा। इसी तरीके से अगर T2 पूछता जाएगा, क्योंकि सब ऊपर आप डायरेक्शन में है, T2 इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस M2 प्लस M3 प्लस M4 इक्वल टू M2 प्लस M3 M4 इंटू A। T2 इक्वल टू A प्लस G। तो हमें T1 और T2 T3 T4 अगर निकालने को बोल दिया जाए तो हम ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। और अगर सपोज ये दोनों रुके हुए हैं सारे तो कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो कैसे निकलेंगे, T इक्वल टू, जब रुके हुए तो एक्सलेशन होगा ही नहीं, तो T इक्वल टू, अगर रुके हुए हैं सारे तो अगर T1 निकालना पड़ जाए तो T1 इज इक्वल टू M1 M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 G। इसी तरीके T2 भी निकाल सकते हो। T2 होगा, T2 हो जाएगा M2 प्लस M3 प्लस M4, ऐसे आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत है। अगर आप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे। एनीथिंग एल्स। एक इक्वेशन और भी है, हमारा सिस्टम बन रहा है। एक ब्लॉक है, इसके टेबल के ऊपर पुली के थ्रू कनेक्ट है, और दूसरा ब्लॉक दूसरे पुली के थ्रू कनेक्ट है। और ब्लॉक ये जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, बट थोड़ा सा इसमें दिखाना है। फाइंड T1 एंड T2 कैसे निकालेंगे। सपोज अगर ये ब्लॉक जो है M1 जो है x डिस्टेंस कवर करता है तो M2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये पुली के थ्रू कनेक्ट है तो वो डिस्टेंस जो है इसमें डिवाइड हो जाएगी, और M1 एंड x/2 जो हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि ये पुली थ्रू कनेक्ट है तो ऑब्वियस है उसकी जो है डिस्टेंस जो है ये x होगा, तो ये x/2 इसमें डिवाइड हो जाएगा। और M2 अगर ऐसा हो रहा है तो सपोज M1 में एक्सेलरेशन a डेवलप होता है तो इसमें जो है a/2 जो है डेवलप होगा। तो अब इस बॉडी के लिए हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे और नेट फोर्स पे लिख लेंगे। इसके लिए क्या होगा, T1 इज इक्वल टू M1A, एंड इसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये दिस इज कमिंग डाउन तो M2 to G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A/2। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड T2 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2T1। अब इससे अब जो ये थर्ड इक्वेशन बना लो, इससे आप T1 T2 निकाल सकते हो। T1 की वैल्यू आप यहां पुट कर दो। सपोज T2 इक्वल टू
M1 2 इंटू M1A, और ये आप यहां से ले जा करके इसमें पुट कर देते हो। T2 की वैल्यू आपकी आ गई है, और T2 की वैल्यू आपकी यहां से आ गई, राइट। तो आप क्या T2 की वैल्यू आएगा, P1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे? आपका T2 की वैल्यू आ गया, T1 की वैल्यू आ गया, और अगर आप यहां पुट कर देते हो, T2 की वैल्यू यहां पुट कर देते हो, मोस्टली आपकी सारी चीजें निकल के आ गई हो। इस तरीके से आप सारे जो है मोशन इक्वेशन लिखोगे इस ब्लॉक्स के लिए, तो आपको ऐसे निकल के आएंगे। भाई अगर ये सपोज ये पूरी x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो और ये पुली चूंकि ये जो ब्लॉक है इस पुली को कनेक्ट है, तो ये दोनों डिस्टेंस में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसकी भी जो होगा x/2 हो जाएगा। और सपोज इसमें एक्सेलरेशन a जो है डेवलप हुआ है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन a/2 डेवलप होगा, राइट। और आप इस हिसाब से देख ही सकते हैं। T1 है T2, और T2 इक्वल टू, चूंकि ये इससे बैलेंस हो रहा है, तो T2 इक्वल टू 2 T1 प्लस T2 आपका आराम से निकल के आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे।